students, I welcome you all to today's session. I hope all of you are doing perfect at your places. Today's topic is creating table in MS Word. In this chapter, we will learn tables, inserting table, entering data in a table, modifying structure of a table, adding a new row, adding a new column, deleting rows and columns, splitting cells, merging cells, changing column width and row height, formatting tables, applying borders, applying shading, applying table styles. तो इस चैप्टर में बेसिकली टेबल्स के बारे में हम जानने वाले हैं, किस तरीके से आप उसमें डेटा डालते हैं, फॉर्मेटिंग होती है और किस तरीके से आप उसको एनहांस करते हैं. Tables. A table is an arrangement of text in a row and column format. You can use tables in Microsoft Word to present information in an organized manner. For example, an excellent way to present information about the activities and house allotted to student is to use table. Roll number, admission number, name of the student, house, activity. 1, W123, Akansha, Ganga, computer. Second, W234, Ayush, Sabarmati, chess. Third, W336, Bhavna, Yamuna, art. Number 4, W345, Dhruv, Ganga, cricket. Number 5, W451, Sonali, कावेरी, आर्ट. तो आपका ये जो बेसिकली टेबल होता है, आप इसको अरेंजमेंट बोलते हैं. बेसिकली आपको जितनी भी चीजें आपको डेटा या इंफॉर्मेशन डालनी होती है, तो आपके रोज और कॉलम्स, इनके फॉर्म में आप एक टेबल पे बहुत ही साफ सुथरे तरीके से एक अरेंजमेंट वाइज आपकी इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं. जैसे कि अगर आपको किसी स्कूल में कौन से स्टूडेंट को कौन सी एक्टिविटी अलॉट हुई है और वो कौन से हाउस का है, बहुत ही सिंपल तरीका है. जैसे यहाँ पे दे रखा है, आपको एक टेबल टैबुलर फॉर्म में आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. Record. The horizontal row of the table is called a record. It stores the details of one student, one employee, etc. Column. The vertical column is known as a field. For example, roll number, admission number, name of the student, house, activity. Cell. The intersection of a row and a column is called a cell. तो record जो होता है वो आपकी row होती है, horizontal row होती है. इसमें किसी भी एक student या एक एम्प्लॉय के बारे में डिटेल्स गिवन होंगी. फिर आपका कॉलम आता है, कॉलम को बोला जाता है वर्टिकल कॉलम और इसको फील्ड भी कहा जाता है. जैसे कि आपका रोल नंबर हो गया, एडमिशन नंबर हो गया, इसमें आपकी वो सारी डिटेल्स आती हैं. फिर तीसरा आपका होता है सेल. सेल होता है रोज और कॉलम्स का जहां पे इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, उसको सेल कहा जाता है. तो ये तीन कंपोनेंट्स होते हैं आपके टेबल के. इंसर्टिंग टेबल. A table can be inserted in a document at any place where the cursor is positioned. To insert a table, follow the following steps. Step 1, click on the Insert tab. Step 2, click the table option. In the tables group, a list of options appear. Step 3, click on the Insert Table option. The Insert Table dialog box appears. Step 4, specify the number of columns and rows. Step 5, click on the OK button. A table with a specified number of columns and rows is inserted in the document. You will notice that two new tabs, Design and Layout, also appear on the ribbon. These tabs contain various commands related to the table. फिर आपका आता है Inserting Table. किसी भी आपके जहाँ पर भी आपने एप्लीकेशन आपका खोल रखा है, विंडो खोल रखी है, वहाँ पर आप अपने डॉक्यूमेंट में जहाँ पर आपका कर्सर पॉइंटेड है, वहाँ पर आप कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हुए टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं. सबसे पहले आपको इंसर्ट टैब पे क्लिक करना है. इंसर्ट टैब पे क्लिक करने के बाद जैसे ही आप टेबल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, टेबल्स ग्रुप में जाके आपके पास अलग अलग ऑप्शंस अपीयर हो जाएंगे. उसमें से आपको इंसर्ट टेबल ऑप्शन पे क्लिक करना है. इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स आपके सामने अपीयर हो जाएगा. होते ही आपको कितने कॉलम्स चाहिए, कितने रोज चाहिए, वो आपको नंबर स्पेसिफाई कर देना है और लास्ट में आपको ओके बटन पे क्लिक करना है. जैसे ही आप ओके बटन पे क्लिक करेंगे, आपका जो डॉक्यूमेंट है जहां पे आपका कर्सर पॉइंटेड था, आपके सामने एक टेबल उतने ही रोज और उतने ही कॉलम्स के साथ दिख जाएगी. Note: You can quickly insert a table by clicking on the table option in the tables group on the Insert tab and then moving your mouse over the grid of squares to highlight and select the number of columns and rows in the टेबल. अगर आपको बहुत ही जल्दी आपको अपने टेबल को इंसर्ट करना है, तो सिंपली टेबल ऑप्शन में जो आपका टेबल्स ग्रुप होता है, इंसर्ट टैब में जाके वहां पर आप अपने रोज एंड कॉलम्स को पूरा का पूरा हाईलाइट कर सकते हैं, कितने रोज एंड कॉलम्स आपको चाहिए, और इस फॉर्मेट में आपको सारे स्टेप्स को फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. Entering data in a table.
You can enter text in a table in the same way you enter text in a document. To move between the cells in a table, you can use arrow keys, mouse pointer on the tab key. The tab key takes the cursor to the next cell. A combination of shift plus tab takes the cursor to the previous cell. तो आपका जो डेटा होता है, जिस मैनर में आप अपने डॉक्यूमेंट में डेटा एंटर करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से आपको अपने टेबल में भी डेटा एंटर आप कर सकते हैं. अगर आपको अपने नेक्स्ट सेल पे जाना है तो सिंपली आपको टैब दबा देना है, तो आपका टैब की से वो नेक्स्ट सेल पे चला जाएगा, और शिफ्ट प्लस टैब अगर आप प्रेस करते हैं तो वो आपका प्रीवियस सेल में आपको लेके चला जाएगा. Modifying structure of a table. You can perform the following tasks to change the layout of the table after you have inserted it in your document. Adding a new row, adding a new column, deleting rows and columns, splitting cells, merging cells, changing column width and row height. You can add a new row to put additional information in the table. The steps to insert a new row are: adding a new row. Step 1. Position the cursor in the row above or below which a new row is to be inserted. Step 2. Click on the Layout tab. Step 3. Click on the Insert tab or insert below in the rows and columns group. A new row gets inserted in the table. अब आपका टेबल का मॉडिफाइंग स्ट्रक्चर भी होता है. अगर आपने टेबल बना दिया है लेट्स सपोज, और आपको उसमें कुछ चेंजेस करने हैं, आपको कॉलम्स हटाने हैं, रोज हटाने हैं, या फिर ऐड ऑन करना है, तो वो भी आप कर सकते हैं. आपकी अलग अलग टाइप की मॉडिफिकेशंस होती हैं, जैसे आपका एडिंग अ न्यू रो, नया कॉलम ऐड करना, सेल्स को स्प्लिट करना, सेल्स को मर्ज करना, या फिर आपकी अलग अलग जो आपकी हाइट होती है रोज की, कॉलम्स की विड्थ होती है, उसको चेंज करना. तो ये सारी मॉडिफिकेशंस आप कर सकते हैं. अगर आपको एक न्यू रो ऐड करनी है आपके टेबल में, तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपना कर्सर पोजीशन करना है जहां पर भी आपको नई रो चाहिए. ऊपर चाहिए तो ऊपर पोजीशन करेंगे, नीचे चाहिए तो नीचे पोजीशन करेंगे. इसके बाद आपको लेआउट टैब को क्लिक करना है. लेआउट टैब पे क्लिक करने के बाद आपको इंसर्ट अबव और इंसर्ट बिलो को क्लिक करना है आपके रोज एंड कॉलम्स ग्रुप में. जो भी आप क्लिक करेंगे वैसा ही उसी लोकेशन पे आपका जो टेबल है वो मॉडिफाई हो जाएगा, रो ऐड हो जाएगी. Know it. To quickly add a row at the end of a table, click the last cell of the last row and then press the tab key. अगर आपको जल्दी से किसी भी टेबल के बिल्कुल लास्ट में आपको एक नई रो को ऐड करना है, तो लास्ट सेल में आप जाइए और वहां पर आप टैब की प्रेस करेंगे तो आपका एक नया रो लास्ट में आ जाएगा. Adding a new column. You can add a new column to provide more information in your table. The steps are: Step 1. Position the cursor in the column to the left or right of which a new column is to be inserted. Step 2. Click on the Layout tab. Step 3. Click the Insert left or Insert right option in the rows and columns group. A new column gets inserted in the table. अब अगर आपको एक नया कॉलम इंसर्ट करना है, सबसे पहले लेफ्ट में चाहिए तो लेफ्ट में कर्सर को लेके जाइए, राइट में चाहिए तो राइट में कर्सर को लेके जाइए. जहां पे भी नया कॉलम चाहिए वहां पे अपने कर्सर को सबसे पहले तो आप पॉइंट कर लेंगे. इसके बाद आपको लेआउट टैब पे क्लिक करना है. लेआउट टैब पे क्लिक करने के बाद आपका जो रोज एंड कॉलम्स ग्रुप होता है उसमें आपको इंसर्ट लेफ्ट और इंसर्ट राइट दोनों में से एक जगह पे क्लिक करना है. जहां पर भी आपने क्लिक किया हुआ है वहां पे आपका एक नया कॉलम आ जाएगा. Deleting rows and columns. Rows or columns can be deleted by following the given steps. Step 1. Place the cursor in the row or column to be deleted. Step 2. Click on the Layout tab. Step 3. Click on the Delete option. In the rows and columns group, a list of options appears. Step 4. Click the Delete rows or Delete columns option to delete a row or column. अब अगर आपको कोई भी रो या फिर कॉलम को डिलीट करना है तो सबसे पहले आप अपने कर्सर को उस जगह पर लेकर जाएंगे जिस चीज को भी आपको डिलीट करना है. उसके बाद आपको लेआउट टैब पे क्लिक करना है. लेआउट टैब पे क्लिक करने के बाद आपके रोज एंड कॉलम्स ग्रुप ने आपको डिलीट ऑप्शन पे क्लिक करना है. आपके सामने मल्टीपल ऑप्शंस आपके सामने अपीयर हो जाएंगे. उसमें आपको डिलीट रोज या फिर डिलीट कॉलम में से किसी भी एक चीज पे क्लिक करना है जो भी आप डिलीट करना चाहते हैं. Splitting cells. Splitting cell refers to divide a cell into multiple cells. The steps for splitting cells are: Step 1. Position the cursor in the cell that you want to split. Step 2. Click on the Layout tab. Step 3. Click on the Split Cells option in the Merge group. The Split Cells dialog box appears.
Step 4. Specify the number of rows or columns you wish to split the selected cell. Step 5. Click on OK. The selected cell is divided into the number of rows or columns as specified by you. अब अगर जब आपको कोई भी एक सेल को मल्टीपल सेल्स में स्प्लिट करना होता है तो उसके कुछ आपके स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले आपको कर्सर को उस सेल पे जाके पोजीशन करना है जो आप स्प्लिट करना चाहते हैं। उसके बाद आपको लेआउट टैब पे क्लिक करना है। लेआउट टैब पे क्लिक करने के बाद आपके मर्ज ग्रुप में स्प्लिट सेल्स ऑप्शन होगा, आपको उस पर क्लिक कर देना है। आपके सामने एक स्प्लिट सेल्स डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। उसके बाद आपको नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स को स्पेसिफाई करना है जितने में आपको आपके सेल को स्प्लिट करना है। आफ्टर दैट यू हैव टू क्लिक ऑन ओके। जो आपका सिलेक्टेड सेल है वो उतने ही नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स में स्प्लिट हो जाएगा। Know it. You can also access the split cells option by right clicking in the cell and choosing the split cells option from the shortcut menu. अगर आपको ये सारे स्टेप्स को फॉलो नहीं करना है, एक शॉर्टकट तरीका है। जिस भी सेल को आपको स्प्लिट करना है उसमें आप राइट क्लिक करिए, राइट क्लिक जाके आपका एक स्प्लिट का ऑप्शन आएगा, वहां से भी आप शॉर्टकट मेन्यू से आप अपने सेल्स को स्प्लिट कर सकते हैं। Merging cells. Merging cells is the opposite of splitting cells. Merging cells refers to combine two or more cells in a row or column into a single cell. Step 1. Select the cells to be merged. Step 2. Click on the layout tab. Step 3. Click on the merge cells option in the merge group. The selected range of cells get merged into a single cell. You can change the alignment of the text inside the merged. अब आपका जो मर्जिंग सेल्स होता है स्प्लिटिंग का बिल्कुल ऑपोजिट होता है। जब आपको मल्टीपल सेल्स को एक सिंगल सेल में आपको मर्ज करना होता है वहां पर आपके कुछ स्टेप्स फॉलो होते हैं। सबसे पहले आप उन सेल्स को सिलेक्ट कर लेंगे जिन्हें आप मर्ज यानी कि कंबाइन करना चाहते हैं। उसके बाद आप लेआउट टैब पे क्लिक करेंगे। लेआउट टैब पे क्लिक करने के बाद आपके मर्ज ग्रुप में मर्ज सेल्स ऑप्शन होगा, आपको उस पर क्लिक कर देना है और आपके जितने भी सिलेक्टेड रेंज ऑफ सेल्स हैं वो मर्ज हो जाएंगे। जो आपके टेक्स्ट का अलाइनमेंट है उसको भी आप चेंज कर सकते हैं। Know it. You can also access the merge cells option by right clicking and choosing the merge cells option from the shortcut menu. अब अगर इतने सारे स्टेप्स आपको इसमें भी फॉलो नहीं करने हैं तो सिंपली आपको सेल्स पे जाना है। आपके सिलेक्टेड सेल्स पे आपको क्लिक करने के बाद राइट क्लिक करना है, उसमें आपका मर्ज सेल्स ऑप्शन आएगा शॉर्टकट मेन्यू में, उसकी मदद से भी आप सेल्स को मर्ज कर सकते हैं। Changing column width and row height. You can resize the row height or the column width by using the mouse pointer or by using the option available on the layout tab. Method 1. Using the mouse pointer. The row height or the column width can be quickly changed by using the mouse pointer. Steps to change the row height or the column width are: Step 1. Place the mouse pointer on the row border or column border. The pointer shape changes to a double-headed arrow when placed on a row's border or to when placed on column's border. Step 2. Drag the arrow up or down to decrease or increase the row height and right or left to increase or decrease the column width. आपकी जो रो की हाइट होती है या कॉलम की जो विड्थ होती है आप उसको भी क्विकली माउस पॉइंटर की मदद से चेंज कर सकते हैं या फिर आपके पास ऑल्टरनेटिव मेथड्स भी होते हैं। सबसे पहला मेथड है आपके माउस पॉइंटर को यूज करते हुए। तो उसके लिए आपको सबसे पहले तो आपका स्टेप 1 है आपका जो रो का बॉर्डर है या कॉलम का बॉर्डर है उस पर आपको अपना माउस का पॉइंटर लेके जाना है। आपका जो कर्सर है वो डबल एरो वाली शेप में आपका चेंज हो जाएगा, आपके कॉलम वाली जगह पर भी और रो वाली जगह पर भी। उसके बाद आपको ड्रैग करना है आपके उस डबल हेडेड एरो को इंक्रीज या फिर डिक्रीज करने के लिए। Method 2. Using the layout tab. The row height or a column width can be changed to a specific height or width using the properties option on the layout tab. The steps to do this are: Step 1. Select the rows or the columns. Step 2. Click on the layout tab. Step 3. Click on the properties button. The table properties dialog box appears. Step 4. In the table properties dialog box, do the following: click the row tab. Select the specify height checkbox and enter a value for the row height. Click the column tab. Select the preferred width checkbox and enter a value. Step 5. Click on the OK button. अब आपका दूसरा मेथड होता है हाइट या फिर विड्थ चेंज करने के लिए आपका लेआउट टैब। इसके लिए आपको सबसे पहले रोज और कॉलम्स को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको लेआउट टैब पे जाना है। लेआउट टैब पे जाने के बाद आपको प्रॉपर्टीज बटन पे क्लिक करना है।
प्रॉपर्टीज बटन पे क्लिक करते ही आपका एक टेबल प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। आफ्टर दैट आपकी टेबल प्रॉपर्टीज का डायलॉग बॉक्स होगा, उसमें आपको दो चीजें करनी है। सबसे पहले आपका रो टैब पे आपको क्लिक करना है। रो टैब पे क्लिक करने के बाद आपको जो आपका स्पेसिफाई हाइट चेक बॉक्स है उसमें आपको स्पेसिफाई कर देना है कि आपको कितनी हाइट चाहिए। दूसरा है आपका कॉलम टैब पे आपको क्लिक करना है। कॉलम टैब पे क्लिक करने के बाद आपकी जो प्रेफर्ड विड्थ चेक बॉक्स है उसमें आपको स्पेसिफाई करना है कि कितनी आपको विड्थ चाहिए। लास्ट में आपको ओके प्रेस कर देना है, आपका जो रो का हाइट है कॉलम का विड्थ है वो चेंज हो जाएगा। Formatting tables. Word offers various features that let you enhance the appearance of your table. You can format the text inside the table, apply stylish borders around the table or change the background color shading of the table. तो formatting table का मतलब होता है अगर आपको border का style change करना है, शेडिंग डालनी है, टेक्स्ट के आपको फॉर्मेटिंग करनी है, बेसिकली आपको अपने टेबल को और भी ज़्यादा एनहांस और अट्रैक्टिव बनाना है, तो वहाँ पर आपकी फॉर्मेटिंग फीचर का यूज किया जाता है। अप्लाइंग बॉर्डर्स. Borders give the table an elegant look. You can apply borders around the entire table or around selected cells. The steps to apply borders are: Step 1. Position the cursor in any cell of the table to apply table border or select the cells for which border style is to be applied. Step 2. Click on the Design tab. Step 3. Click on the arrow next to the Borders option in the Table Styles group. A drop-down list appears. Step 4. Click on the Borders and Shading option. The Borders and Shading dialog box appears. Step 5. Use the various options in the Borders tab and select the desired setting, style, color and width for the border. You can check the result of the settings applied by you in the preview area. Step 6. Click on OK to apply the settings. अब अगर आपको borders apply करने हैं तो basically border आपका टेबल को क्या करता है, एक elegant और एक neat and clean look दे देता है। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको अपना कर्सर वहां पर पोजीशन करना है किसी भी सेल पे जहां पर आपको बॉर्डरिंग चाहिए, और उन सारे सेल्स को आपको सिलेक्ट कर लेना है जहां जहां पर आपको बॉर्डर को अप्लाई करना है। उसके बाद आपको डिजाइन टैब पे जाना है। डिजाइन टैब पे जाने के बाद आपका एक एरो नेक्स्ट टू बॉर्डर ऑप्शंस होगा इन द टेबल स्टाइल्स ग्रुप, आपको उस पर क्लिक कर देना है। आपके सामने एक ड्रॉप डाउन लिस्ट अपीयर हो जाएगी। इसके बाद आपको बॉर्डर्स एंड शेडिंग ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपका एक बॉर्डर्स एंड शेडिंग डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। उसमें आपको वेरियस ऑप्शंस होंगे आपके बॉर्डर्स टैब पे। उसमें अलग अलग टाइप की आपकी सेटिंग्स होंगी, जैसे कि आपका सेटिंग, स्टाइल, कलर, विड्थ ऑफ द बॉर्डर। आपको चेक करना है जितने भी रिजल्ट्स आपके, अगर आपको देखना है कि किस टाइप का आपका बॉर्डर दिख रहा है तो आप प्रीव्यू एरिया में जाकर उसको देख सकते हैं कि आपके टेबल पे वो बॉर्डर किस टाइप का दिखेगा। ये सब करने के बाद आपको सेटिंग्स में ओके पे क्लिक करना है और ओके पे क्लिक करते ही आपका बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। Apply shading. You can apply background color on the table or on selected cells using the following steps. Step 1. Select the table or select the cells. Step 2. Click on the Design tab. Step 3. Click on the arrow next to the shading option in the Table Styles group. A list of color options appears. Step 4. Click and select the color of your choice. The color appears as the background of the table or the selected cells. अब अगर आपको शेडिंग को अप्लाई करना है, शेडिंग आपका जो बैकग्राउंड कलर होता है वो अगर आपको चूज करना है तो उसके लिए आप सबसे पहले तो टेबल को सिलेक्ट करेंगे या फिर आप सेल्स को सिलेक्ट करेंगे जिसके पीछे आपको बैकग्राउंड कलर चाहिए। उसके बाद आप डिजाइन टैब पे जाएंगे। डिजाइन टैब पे जाने के बाद आपका जो टेबल स्टाइल्स ग्रुप में शेडिंग ऑप्शन के पास एक एरो होगा, आप उस पर क्लिक कर देंगे। आपके सामने कलर की अलग अलग ऑप्शंस की लिस्ट आ जाएगी। उसमें से आपका जो भी आपको कलर पसंद है आपको उस पर क्लिक करना है, सिलेक्ट उसको करना है। आपका जो कलर है आपके सिलेक्टेड सेल्स के पीछे वो अपीयर हो जाएगा। Applying table styles. Word provides many inbuilt table styles that let you quickly change the borders, shading, alignment and fonts in tables. The steps to apply table style are: Step 1. Select the table or click anywhere inside the table. Step 2. Click on the Design tab. Step 3. Click the More button in the Table Styles group to see all the tables styles. Step 4. Click and select the desired style. The style will be applied to the table. फिर आपका आता है अगर आपको अलग अलग टेबल स्टाइल्स के पैटर्न चाहिए तो इसके लिए आप, जैसे आपको क्विकली कोई बॉर्डर चेंज करना है, शेडिंग करनी है, अलाइनमेंट करनी है, फॉन्ट का साइजेस चेंज करना है, तो सबसे पहले तो आप
टेबल पे क्लिक करेंगे या फिर टेबल के बीच में कहीं पर भी आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपको डिजाइन टैब पे जाना है। डिजाइन टैब पे जाने के बाद आपके टेबल स्टाइल्स ग्रुप में एक मोर बटन होगा, आपको उस पर क्लिक करना है ताकि आपको सारे के सारे टेबल स्टाइल्स दिखने लगे। उसके बाद जिस भी टाइप का टेबल स्टाइल आपको पसंद है आपको क्लिक करके वो सिलेक्ट कर लेना है, आपके टेबल पे वही टाइप का स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। To revise, a table is an arrangement of text in a row and column format. A table can be inserted in a Word document by using the table option in the tables group on the insert tab. The structure of the table can be modified by inserting a new row, column, deleting rows, columns, splitting cells, merging cells, or changing row height or column width. Splitting cells refers to divide a single cell into multiple cells. Merging cells refers to combine two or more cells in a row or a column into a single cell. You can format a table by adding borders, shading or applying an inbuilt table style. तो बेसिकली आपका जो टेबल होता है वो आपको कॉलम और रो के फॉर्मेट में आपके अलग अलग डेटा को इन्फॉर्मेशन को फीड करने का अपॉर्चुनिटी देता है। इसमें आपका जितना भी डेटा होता है उसको आप फॉर्मेट कर सकते हैं। टेबल्स में आप रोज को, कॉलम्स को ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, उसमें बॉर्डर्स डाल सकते हैं, बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट्स की अलाइनमेंट दे सकते हैं, साइज देख सकते हैं। इसके अलावा आपको अगर सेल्स को स्प्लिट करना है, मर्ज करना है, डिलीट करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। इसकी जितनी भी एक्सरसाइजेस हैं आपको खुद से करनी है।